Hello students, welcome to my channel. Today we will learn the topic double helical structure of DNA. So what is the learning objective of this topic? That after this video you can understand the basic structure of DNA. What is DNA? DNA, that is the genetic material in case of most of the living organisms. Why it is the genetic material in case of most of the living organisms? Because it is more stable as compared to RNA. So if we know the structure of the DNA, then we can understand the chemistry of DNA very clearly, and we can come to know that what are the different bases in the DNA, what is the backbone of the DNA. So everything we can understand, and also the structure of the DNA, that how it look like. It is double stranded and it is the helical structure. So that we will understand after this video. So let's start. The double helical structure of DNA. सो दिस डबल हेलिकल मीन्स कि ये हेलिकल लाइक होगा, जैसे स्प्रिंग होता है इस तरह से हेलिक्स की फॉर्म में ये डीएनए होगा, एंड एक स्ट्रैंड नहीं होगा, इसमें 2 स्ट्रैंड होंगे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा इसका. सो दैट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक. ये जो 2 साइंटिस्ट, दीज 2 साइंटिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, वॉटसन एंड क्रिक. in 1953, you have to learn the date also. In 1953 proposed the double helical structure of DNA, और उनको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था. तो उन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया डीएनए का, कि जो डीएनए है वो इस तरह से दिखाई देता है. देयर इज़ द ऑन वन स्ट्रैंड एंड दैट इज़ द नेक्स्ट स्ट्रैंड. There are the 2 stranded DNA and it is in the helix form. एक जो स्प्रिंग होता है उसकी तरह होता है ये. So how the Watson and Crick gave the double helical structure means, उनके माइंड में ये एकदम से कैसे आया कि जो DNA का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल होगा. So these 2 scientists based on the 2 observation. First is the Chargaff's rule. चारगाफ्स रूल जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि दैट इज़ द बेस पेयरिंग, और इसने ये बताया है कि जो द रेशो ऑफ द प्यूरिन्स एंड द रेशो ऑफ द पिरामिडिन दैट इज़ इक्वल. मीन्स A plus G divided by T plus C means adenine plus guanine and thymine plus cytosine, their ratio is equal to 1. So I think you understood. And these are the purines, A and guanine, and thymine and cytosine, these are the pyrimidines. So in case of purine there is the double rings are there, and in case of pyrimidines only the single ring is present. And the purine combined with pyrimidine, suppose A, so A, that is the purine and it combined with pyrimidine, A and T, so it combined with T, so here T is present. So that is the Chargaff's rule. So on the basis of the Chargaff's rule, and second is the X-ray crystallography of Rosalind Wilkins and Franklin. जो विल्किंस था और जो फ्रैंकलिन था, रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी दी थी डीएनए की. जो डीएनए था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में वो इस तरह से ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में उनको दिखाई दे रहा था. सो ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, the Watson and Crick, they made the thesis, and then
proposed the double helical structure of DNA, and this is the double helical structure of DNA that was given by Watson and Crick. Now what is there in this DNA? There is one strand, this black color, that is the one strand, and that is the another strand. So you can see the black color and the red color. So if one strand have the 5' end, then here it have the 3' end. So what is the meaning of 5' end? 5' end means at the sugar at the 5th position the phosphate group is attached, and if at the 3rd position hydroxyl group is attached, and then it is known as the 3' end. तो एक अगर स्ट्रैंड का 5' होगा, उसके सामने दूसरे स्ट्रैंड का क्या होगा? 3' एंड. तो इस तरह से जो डीएनए है वो डबल हेलिकल की फॉर्म में होगा. बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, लेट अस अंडरस्टैंड द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए, देन यू कैन बेटर understand. Suppose that is the one strand of the DNA. We can take with the help of इसकी हेल्प से आप इसको पता कर सकते हो, जिसमें आपको ये दिखाई दे रहे हैं गोल्डन एंड द रेड कलर. तो अगर आप ये जो रेड कलर हैं इनको फॉस्फेट ग्रुप मानो और गोल्डन को क्या मानो आप? शुगर. तो इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं. This golden color that is the sugar and this red color that is the phosphate. तो इस तरह से ये एक स्ट्रैंड है और इधर भी इस तरह से ये एक स्ट्रैंड है. तो इन स्ट्रैंड्स में आपने देखना है that red color that represent the sugar. जो ये रेड कलर है ये आपको क्या शो कर रहा है? शुगर. और जो ये ब्लैक कलर है ये आपको शो कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप. तो यहाँ पे शुगर से 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, सो इट इज़ द 5' एंड. ओके. और इसी स्ट्रैंड में लास्ट में आपने देखा यहाँ पे 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच नहीं है. ये 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो फ्री है. हमेशा याद रखना है जो 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो होता है वो फ्री होगा. अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा तो वो कौन सा होगा? 5' एंड. सो ये एक स्ट्रैंड हो गया. देन दैट इज़ द नेक्स्ट स्ट्रैंड. इस स्ट्रैंड में क्या है? यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है, सो दैट इज़ द 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप. दिस इज़ द शुगर, फॉस्फेट, शुगर, दैट इज़ द फॉस्फेट, दैट शुगर एंड द फॉस्फेट. एंड at 5th position here also phosphate group is there, so that is the second strand. And these two strands are complementary to each other. एक दूसरे के complementary होंगे. क्यों? Because these strands are attached with the help of base pairs. जो ये इसके अंदर क्या है? ये these are the base pairs. So you can see यहाँ पे टू रिंग्स हैं, ये प्यूरिन्स को डिनोट कर रहे हैं. एंड द प्यूरिन्स को मैंने आपको बताया था कि कैसे याद रख सकते हो प्यूरिन्स को आप? AG से, एडेनिन एंड ग्वानिन. और पिरामिडिन्स को कट से, कट मीन्स CUT. सो C साइटोसिन, U फॉर यूरेसिल एंड T थाइमिन. इन केस ऑफ RNA एट द प्लेस ऑफ थाइमिन व्हाट इज प्रेजेंट? यूरेसिल. सो adenine combine with thymine, and here what is it? It is the hydrogen bond. ये क्या होगा इनके बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड. अब नेक्स्ट बेस पेयर है दैट इज़ द थाइमिन. ये हमारा पिरामिडिन है क्योंकि ओनली 1 रिंग इज प्रेजेंट. थाइमिन जो है वो किसके साथ कंबाइन करेगा? एडेनिन के साथ. सो हेयर यू कैन राइट A एडेनिन. C combine with guanine, so आप यहाँ लिख सकते हो G. And you have to remember one thing, there is the triple bond between C and G and double bond between A and T or T and A, and these bonds are hydrogen bond. कौन से bond होंगे इनमें? Hydrogen bond. So I think you understood the structure of the DNA. Now just come to the double helical structure.
So in this double helical structure, the two helix are there and there are the base pairs inside it. And what is the pitch of one turn? One turn, ये इतना टर्न नहीं होगा, ये पूरा complete turn जहाँ पे complete होगा उसको हम बोलेंगे one turn. And the pitch of one turn, that is 34 angstrom और 3.4 नैनोमीटर. एक टर्न की जो पिच होगी वो कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर. और इस एक टर्न में हाउ मैनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10. इस एक टर्न में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होंगे? 10. सो 10 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन वन टर्न. और अगर हम डिस्टेंस निकालें, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर, जो एक दूसरे के बीच में, जैसे सपोज ये एक बेस पेयर है और ये दूसरा, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा अगर वो हम निकालते हैं तो टोटल इसमें 10 बेस पेयर हैं तो वो आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर और वी कैन से 3.4 एंगस्ट्रॉम. So you understood the pitch of the DNA helix, that is 34 angstrom और 3.4 नैनोमीटर. पिच क्या होगी? एक टर्न जहाँ पर कंप्लीट होगी वो डिस्टेंस जो होगा, और 10 बेस पेयर्स होंगे इसमें और एक बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम. So that is the distance. So that is the double helical structure of DNA given by Watson and Crick. And what is present in the DNA? The hydrogen bond is present between the base pairs and base pairs are present. There is the backbone of sugar and phosphate, and these base pairs are attached to the sugar by the N-glycosidic linkage, and the phosphate group is attached to the sugar with the phosphoester bond. और ये जो पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन है that is attached with the help of these phosphodiester bond, or we can say the a polynucleotide chain is formed. एक पूरी चेन बन जाएगी like this. एक पूरी चेन बनेगी डीएनए की जिसके अंदर क्या होंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड. एंड व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं मैंने आपको बताया है. शुगर, फॉस्फेट एंड बेस पेयर, तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड. सो दैट इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड दीज बेस पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. अगर हम एक स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं तो दूसरा स्ट्रैंड जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा. अगर हमें एक स्ट्रैंड के बेस पेयर्स का पता है, सपोज इस स्ट्रैंड पे इधर ए लगा हुआ है, टी है, जी है, सी है. इफ दिस इज द वन स्ट्रैंड हियर द 5 प्राइम एंड द 3 प्राइम, देन वी कैन टेल द बेस पेयर ऑन द सेकेंड स्ट्रैंड. हाउ? आपको पता है ए कंबाइन विद टी, टी कंबाइन विद ए, जी कंबाइन विद सी, सी कंबाइन विद जी. तो आप जो दूसरे स्ट्रैंड के जो बेस पेयर्स हैं उनका पता लगा सकते हो. सो दीज बेस पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. और जो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो ये कॉइल्ड फॉर्म में है, ये किस तरह से है? राइट हैंड फैशन में ये कॉइल्ड है. ओके, सो दैट इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. सो इट वाज गिवन बाय Watson and Crick in 1953 based on the two observation. First, that is the Chargaff's rule, and second, X-ray crystallography of Rosalind Franklin and Wilkins. तो उन दोनों ऑब्जर्वेशन के बेस पे फिर वॉटसन एंड क्रिक जो 2 साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या दिया? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया. किसका? डीएनए का. And now you can see the pitch of the DNA, that is 34 angstrom, 3.4 नैनोमीटर आप बोल सकते हो. और इसमें कितने बेस पेयर्स होंगे? 10 बेस पेयर. एक बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.34 नैनोमीटर और वी कैन से 3.4 एंगस्ट्रॉम.
So that is the double helical structure of DNA. I hope you understood it well. Thank you.